Students, today we are going to take up a topic which is, you can say, from which for 90% of the times you will expect a numerical question only. So you have to see it very, very carefully, and this will be the topic which will enable you to calculate a very complex resistance combination to find out the equivalent value of resistance, particularly when you are unable to find out whether it is a series combination or not, right? Series parallel combination or not. In those situations, how do we find out the resistance? That we will learn on the basis of this question, this particular topic. In today's session, I'll not give you assignment. However, I'll make you practice one question here in the session itself. Because on Monday we have planned a test till combination of cells. That is your session lecture number 3.8 that we have done yesterday, right? So from 3.1 to 3.8 session, whatever topics we have done, all those will come in your Monday's test, except color coding and resistance combinations, because these two topics are no more in the syllabus, right? Okay, then I'm going to start. Okay, so see students, today we are going to discuss about the Kirchhoff's laws. So let us see what is it about. Students, there are total 2 laws that we are going to discuss. So first one is this one. Let me start. Yes. Okay, so the first law, there are 2 laws as I told you for the Kirchhoff's laws. The first law, it is also called the current law, or it is also called the junction law. Students, the first law is applicable at the junctions. Now, what is the meaning of junction? Junction is a joining point. Suppose you are having a situation like this where there are certain number of wires joined at a single point. Through these wires, certain number of currents might be entering, some others might be leaving, right? At a joint, all the currents cannot just be entering and all the currents cannot just be leaving. There must be some currents which are entering and there must be some currents which are leaving, so that there is a free flow of charge. जैसे स्टूडेंट्स मान लो कि आपके पास एक पाइप है, उस पाइप के जॉइंट्स हैं, कहीं पे आके इकट्ठे हो रहे हैं और उस पाइप्स में पानी है, तो कुछ जगह से पानी एंटर करेगा, कुछ जगह से लीव करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि सारे का सारा पॉइंट, जैसे मान लो कि सपोज इफ आई कंसीडर अ सिचुएशन लाइक दिस, ये पाइप्स हैं, इन पाइप्स में पानी आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पानी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से सब तरफ से आ रहा है. तो अगर आ रहा है तो फिर यहाँ से जाएगा किधर, राइट? तो some water will be entering, from some point it would be leaving also. The same way is about the junction. In the where the current is entering or leaving, through certain wires it will be entering, through certain other wires it will be leaving, right? तो ये जंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है किर्चर्स लॉ. और जो हमारी जर्नल अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी जर्नल आइडिया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसी के बेस के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है कि जितना करंट एंटर हो रहा होगा जंक्शन के ऊपर उतना ही लीव कर रहा होगा. दैट मीन्स टू से द टोटल करंट विच इज एंटरिंग एट अ जंक्शन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल करंट विच इज लीविंग द जंक्शन. बिकॉज वी नो जंक्शन के ऊपर कोई सोर्स नहीं है, जंक्शन के ऊपर कोई सिंक भी नहीं है. सोर्स का मतलब क्या? कोई ऐसी चीज जो करंट को जनरेट कर सके, जिससे ये हो कि जो आने वाला करंट है वो कम है और जाने वाला ज्यादा है. ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज क्योंकि वहां पे कोई भी सोर्स नहीं है. तो जंक्शन के ऊपर कोई सोर्स नहीं है, इसलिए द अमाउंट ऑफ करंट विच इज एंटरिंग शुड बी इक्वल टू द करंट विच इज लीविंग. ऑन द सेम ग्राउंड्स, क्योंकि जंक्शन के ऊपर कोई सिंक भी नहीं है, यानी कि डिस्ट्रक्ट भी नहीं हो रही है जो करंट की वैल्यू है, तो एज अ रिजल्ट करंट कम भी नहीं हो सकता है. तो जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा एंड दीज टू अमाउंट्स मस्ट बी सेम. तो ये चीज जो है वो कहता है, जो पहला रूल है हमारे पास किर्चॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा जंक्शन पे उतना ही लीव करेगा. स्टूडेंट्स, जो किर्चॉफ्स लॉ के पीछे जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.
क्योंकि चार्ज जनरेट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज एंटरिंग पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज लीविंग पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों की अमाउंट की वैल्यू जो है दैट शुड बी सेम। So what does this law state? The algebraic sum of electric currents at a junction in any electrical network is always zero at a junction। तो जंक्शन के ऊपर जो टोटल अमाउंट करंट का है वो जीरो रहेगा, यानी कि जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो कोई उसके अलावा एडिशनल करंट नहीं होगा। तो जंक्शन के ऊपर कितना करंट है अगर हम उसकी बात करें तो वो करंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना एंटर किया उतना लीव कर गया, तो जंक्शन के ऊपर स्टे नहीं किया करंट ने। You can say it this way: the algebraic sum of all the electric currents at the junction is zero, or you can also say the total amount of current entering at a junction is exactly equal to the total amount of current which is leaving the junction। तो इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक जंक्शन सपोज कर लेते हैं। इस जंक्शन के ऊपर कुछ एक करंट्स एंटर कर रहे हैं, कुछ एक करंट्स लीव कर रहे हैं। जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, दीज आर दी करंट्स विच आर एंटरिंग एट द जंक्शन ओ, और जो रेड में नजर आ रहे हैं, दीज आर दी करंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जंक्शन क्या चीज है? ये हमने कोई स्पेशली कोई ऐसी वायर्स को ज्वाइन करके कोई ये डायग्राम या ऐसा कुछ स्पेशल फिगर नहीं बनाया है। इट इज अ पार्ट ऑफ अनदर सर्किट, एक सर्किट का पार्ट है। जैसे कि सपोज आई एम हैविंग अ सर्किट लाइक दिस, ये कुछ सेल लगे हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये अपने आप में एक जंक्शन है। यहाँ पे कुछ वायर्स एंटर हो रही हैं, कुछ लीव कर रही हैं करंट की वैल्यूज। तो इस तरह की सिचुएशन जो है दैट इज अ जंक्शन इन इटसेल्फ। ठीक है, तो एक जंक्शन जो है वो क्या है? वो एक नॉर्मल सर्किट का एक हिस्सा है, राइट? ओके, सो व्हाट डू वी से? तो इसमें स्टूडेंट्स हम कन्वेंशन ये लगा सकते हैं कि सपोज जितने करंट एंटर कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो करंट लीव कर रहे हैं उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? ये दो करंट एंटर कर रहे थे, I1 एंड I4, और बाकी के जो तीन करंट्स थे वो लीव कर रहे थे। तो जो लीव कर रहे हैं उनके साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो टोटल सम कितना हो गया करंट का? जीरो हो गया। तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। You can also say it in this form that I1 plus I4, that is the total current which is entering, will be equal to I2 plus I3 plus I5. That means to say this is the total current which is leaving, right? Therefore, the total amount of current which is entering is exactly equal to the total amount of current which is leaving. So this is what we have got. So what is the sign convention here? The incoming currents towards the junction are taken as positive, and the outgoing currents which are going away from the junction, they are taken as negative. So so this is the thing. Sometimes you may be asked this question: what is the basis of Kirchhoff's first law, or what is the basis of Kirchhoff's junction law or junction rule, right? So the basis is the law of conservation of charge, as I have told you earlier also. It is based upon the law of conservation of charge, because charge can neither be created nor be destroyed. So whatever amount is entering must be leaving. It cannot be accumulated there at the junction, right? The charges cannot accumulate at a junction. The number of charges that arrive at a junction in a given time must leave the same at the same time in accordance with conservation of charge, right? Have you all understood this first law? If anybody is having a difficulty, you can speak up. It is quite simple one as such. There is nothing so difficult about it. But still, if you want to discuss it more, you can ask me. Yes? All done? Then should I move to the second one? Okay. Let me take your attention. Yes. Somebody wants to speak up? You can speak up. It is those who have joined late. Try to be on time. You look at the time now.
You're quite late. One topic has already passed, Jessica. You people are late by around 15 minutes, right? Try to be on time. That is one. Number two, those who have joined late, let me just tell you once again. On Monday, you are going to have a test of topics till session 3.8 जो मैंने YouTube पे भी डाले हुए हैं. You can see from there also. You can take the reference from there. तो टिल 3.8 जो टॉपिक्स हैं उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स जो अभी सिलेबस से रिमूव हो गए हैं वो नहीं आएंगे उसमें. ऑल रिमेनिंग वंस विल कम. ओके, ऑलराइट. Let me move on to the second law then. Second law, the voltage law, it is also called the loop law. पिछला जो था students, that was the junction rule. This one is a loop rule. जंक्शन रूल स्टूडेंट जंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, वहां पे पूरा सर्किट हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिंपल एक जंक्शन कंसिडर करते हैं. लेकिन जो सेकंड लॉ है वो लूप लॉ है, उसके लिए हमें एक पूरी लूप चाहिए, एक पूरा क्लोज्ड पाथ चाहिए जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे. So let me show you what is it like. So what does this law state? Students, इसकी statement जो है as such आपको ऐसे सीधे नहीं समझ आएगी unless we get into the details of that. But still, let me tell you what is it. So algebraic sum of all the potential drops and EMFs across any closed path of electrical network is always zero. इस चीज का क्या मतलब है? Students, I'm going to consider a circuit as such. ये मैंने एक सर्किट सपोज कर लिया है स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये 2 सेल्स लगे हुए हैं जिनकी EMFs हैं E1 एंड E2, और सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू होगी. करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? नाउ लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली. ऐसे जंक्शन के क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार वो आपको करंट की डायरेक्शन शो कर देते हैं वहां पे कि करंट कहाँ कहाँ पे कितना कितना है और किस किस डायरेक्शन में है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो शो ना करें करंट की डायरेक्शन, आप अपनी तरफ से शो करो करंट की डायरेक्शन की करंट किस तरफ फ्लो करेगा. अब स्टूडेंट्स असल में करंट किस तरफ फ्लो करेगा जब एक से ज्यादा सेल सर्किट में लगे हुए हैं, वो डिपेंड करता है उन सेल्स की EMFs के ऊपर. अब जैसे मान लो कि ए वाला जो सेल है, मान लो इसकी EMF कम है और जो E1 है इसकी EMF ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में E1 विल डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इसकी वजह से करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा. इस करंट का एक हिस्सा इधर जाएगा क्योंकि ये वाली ब्रांच में कोई भी सेल नहीं है, और रिमेनिंग हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा जो इस सेल में से फ्लो करेगा. ये कब की बात है? अगर E1 की वैल्यू काफी ज्यादा है तो, राइट. अगर E1 E2 कंपेरेबल है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो E1 है उसका करंट तो जैसे हमने देखा वैसे ही होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में ये भी हो सकता है कि अगर ये E1 E2 की वैल्यूज कंपेरेबल हैं तो इट इज पॉसिबल कि इसका करंट इस तरफ जाए और इसका करंट इस तरफ आए और उसके बाद ये दोनों करंट कंबाइन होके यहाँ से फ्लो करें. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, सो ये सिचुएशन है यहाँ पे. तो ये डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है. अब स्टूडेंट्स देखिए कि अब हमें नहीं पता है शुरू में कि असल में करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी करंट की डायरेक्शन मान लो, और उसके बाद क्या होगा फिर कि अगर आपने डायरेक्शन गलत मानी हुई है, अगर आपने गलत मान ली है डायरेक्शन, तो फिर क्या होगा, सिंपली जो आपने अगर करंट की डायरेक्शन असल में करंट इस तरफ फ्लो करना था लेकिन आपने इसके ऑपोजिट ले लिया है, तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा कि आपका, यस समबडी वांट्स टू स्पीक अप समथिंग. उससे क्या होगा कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन गलत मानी है तो सिर्फ करंट का साइन नेगेटिव हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. तो अगर कहीं पे किसी ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल है इन क्वेश्चंस में. वो नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ ये होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे इस ब्रांच में मैंने करंट माना है I1 और मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने डायरेक्शन मान रखी है वो गलत है और असल में करंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट. तो सिर्फ इतनी चीज है. तो नेगेटिव साइन जो है वो एक्सेप्टेबल है यहाँ पे करंट के लिए. फाइन, पता लग गई ये चीज सबको? ओके, नाउ लेट मी सी
यहाँ पे हमने मैम यस यस मैम फिर से रिपीट कर दीजिए वाला ये चीज। अच्छा ओके, लिसन स्टूडेंट्स, देखिए कि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि कई बार करंट की डायरेक्शन आपको दी होती है, कई बार नहीं दी होती है। जब नहीं दी हुई है तब आपको खुद से करंट की डायरेक्शन सपोज करनी पड़ती है, ठीक है। तो तुम्हारी जनरल टेंडेंसी हमारी यही होती है कि यहाँ पे हर सेल के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से भी स्टार्ट हुआ, यहाँ से भी स्टार्ट हुआ। मान लो ये वाला करंट I1 था, ये वाला करंट I2 था। ये दोनों करंट अब इस जंक्शन पे पहुंच गए हैं। ये करंट यहाँ से पहुंच गया, ये करंट यहाँ से पहुंच गया। अब दो करंट एंटर कर रहे हैं तो कहीं पे लीव भी करेंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों करंट्स कंबाइन करें और इस वाली ब्रांच से निकल जाएं और यहाँ पे टोटल करंट R2 में से हो जाए I1 प्लस I2, दोनों का करंट इसमें से फ्लो कर जाए और उसके बाद दोबारा से फिर से डिवीजन उसी तरह से हो जाए, फिर से यहाँ पे I2 हो जाए और यहाँ पे I1 हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, लेकिन ऐसा कब होगा? अगर E1 और E2 की वैल्यूज जो हैं वो कंपेरेबल हैं, कोई एक सेल उसमें से बहुत ज्यादा वोल्टेज का नहीं है। लेकिन अगर E1 या E2 में से कोई एक सेल बहुत हाई वोल्टेज का है, बहुत हाई वोल्टेज का है, तो वो सर्किट में करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। फिर दूसरा सेल जो है वो करंट की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में क्या हो सकता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि अगर मान लो कि जो E1 है उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा है, E1 से करंट स्टार्ट हुआ I1, तो फिर E2 की हिसाब से करंट नहीं फ्लो करेगा, फिर E1 के करंट का ही एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर जाएगा। तो यहाँ पे E2 में से करंट जो है वो ऑपोजिट सेंस में फ्लो करेगा और इसकी वजह से फ्लो करेगा, E1 की वजह से। तो यहाँ पे काउंट क्या होगा फिर सिचुएशन में कि जो E1 है वो यूज में है और जो E2 है वो क्या है, वो चार्जिंग पे है, वो उसको चार्ज कर रहा है ये वाला सेल, ठीक है। ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस एंड यू कैन रिमेम्बर कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे करंट की डायरेक्शन दी नहीं हुई आपको, आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन सपोज कर सकते हो। अगर आपने जो खुद डायरेक्शन सपोज की है वो गलत है, असल में करंट उस तरफ फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा फिर उस ब्रांच में करंट का साइन नेगेटिव आ जाएगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो नेगेटिव साइन, उससे कोई इश्यू नहीं है। आप फाइनल एग्जाम में यू कैन राइट इट दैट वे। अगर मान लो कि इस ब्रांच में जो करंट की डायरेक्शन है मैंने इस तरफ मानी थी लेकिन असल में करंट इस तरफ था, तो क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो सिर्फ इस चीज का आपने ख्याल रख लेना कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो असल में करंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया था और नेगेटिव साइन से कोई इशू हमें नहीं है, राइट। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क फर्दर यू कैन आस्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डायरेक्शंस हम मान रहे हैं करंट की कि दोनों सेल्स के पॉजिटिव से ही करंट स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाले सेल का करंट I1 है और नीचे वाले का I2 है और ए जंक्शन पे जब वो पहुंचेंगे तो फिर वहां से ये दोनों करंट कंबाइन होके R2 रेजिस्टेंस के बीच में से फ्लो करेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये करंट जब सी जंक्शन पे पहुंचेगा तो फिर से उसी तरह से डिवाइड हो जाएगा जैसे ये आया था। तो इधर फिर से I2 हो जाएगा और इधर फिर से I1 हो जाएगा। तो ये वाली लूप जो ऊपर वाली लूप है, इस लूप में करंट होगा I1 और नीचे वाली लूप में होगा I2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं दो लूप्स मान रही हूँ, देखिए ध्यान से। एक लूप मैंने इस तरह से मानी है जो A से B से C से A, यानी कि इस तरह से एक लूप हमने मानी है। ये लूप जो है ABCA, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लूप ABCA, ऐसे लिख सकते हो, या आप यहाँ पे इसके अंदर 1 लिख दो, 1 लिख दिया इसके अंदर एंड यू कैन कॉल इट एज लूप 1। तो जब आपने रेफर करना है न्यूमेरिकल में यू कैन आइदर कॉल इट एज लूप ABCA और यू कैन कॉल इट एज लूप 1। तो जो लूप 1 है वो हमने कैसी ली है, हमने ली है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ये लूप। लूप की डायरेक्शन स्टूडेंट्स एंटायरली आपकी चॉइस है, उससे आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो क्लॉकवाइज लो, आप चाहो एंटी क्लॉकवाइज लो, बोथ वेज इट इज इक्वली वैलिड, कोई इश्यू नहीं है। अभी आपने इस सिचुएशन के लिए लूप जो है वो क्लॉकवाइज मानी है, ठीक है। अब जब लूप क्लॉकवाइज है तो उसके लिए ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन कैसे आई, इसके लिए साइन कन्वेंशंस हमने देखनी है। दूसरी लूप के लिए हमने ऐसे दूसरी लूप भी क्लॉकवाइज मानी है, उसके लिए भी कोई इक्वेशन आई, वो कैसे आई मैं वो पहले साइन कन्वेंशंस बता दूं आपको।
साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स क्या है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशंस जो हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखी हो सकती हैं। आपकी रेफरेंस बुक्स में साइन कन्वेंशन अलग हो सकती है, एनसीईआरटी में अलग हो सकती है, आप एचसी वर्मा फॉलो करते हो उसमें अलग हो सकती है, लेकिन साइन कन्वेंशन कुछ भी हो, इक्वेशन सभी से सेम ही बनेगी। कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, लेकिन जो इक्वेशन बनेगी दैट विल टर्न आउट टू बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो नाउ लेट मी टेल यू हाउ डज इट वर्क। स्टूडेंट्स देखिए, लूप की पहली कन्वेंशन क्या है कि जो आपके पास जब आप उस लूप में मूव कर रहे हो तो लूप में मूव करते टाइम अगर आप पहले उस सेल का या बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फेस करते हो तो आपने उसकी ईएमएफ को क्या लिख लेना है, नेगेटिव लिख लेना है। अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल को फेस करते हो तो फिर आपने क्या करना है, उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव ले लेना। अब देखिए यहाँ पे इस लूप में हम मूव कर रहे हैं इस तरह से, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे मूव करते करते हम पहले क्या फेस करेंगे, पहले हम इस बैटरी का पॉजिटिव फेस करेंगे। तो जब बैटरी का पॉजिटिव आप फेस करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, ईएमएफ जो हो जाएगी दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। तो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव जब आप फेस करोगे तो वहां पे उसकी ईएमएफ क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। यहाँ पे पहले इसके पहले नेगेटिव साइन नहीं है, इट इज शोइंग अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पहली कन्वेंशन जो है वो ईएमएफ की है। अब दूसरी लूप में देखिए, दूसरी लूप में जब आप इस तरह से घूम के यहाँ पे पहुंचेंगे तो पहले आप क्या फेस करेंगे, यू विल फर्स्ट फेस द नेगेटिव। आप दूसरी वाली जो दूसरा जो सेल है जब आप उसकी लूप में मूव करते हो तो यू विल फर्स्ट फेस द नेगेटिव टर्मिनल, तो उसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब स्टूडेंट्स याद आपने क्या रखना है कि सारी I इंटू आर वाली टर्म्स, I इंटू आर यानी कि वोल्टेज होता है, V इक्वल टू आई आर आपको पता है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो वोल्टेज वाली टर्म्स हैं जितनी भी हैं यहाँ पे। ये सारी इक्वेशन जो है ये वोल्टेज वाली टर्म्स की ही है और उनका टोटल हमने बोला है कि 0 होता है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में हमने बताया ऊपर स्टेटमेंट में। तो आपने सारी I इंटू आर वाली टर्म्स और सारी EMF वाली टर्म्स जो हैं वो सारी एक ही तरफ रखनी है। सारी इक्वेशंस जो है सारी टर्म्स एक ही तरफ रखनी है और उनको एक तरफ रखते हुए आपने देखना है कि वहां पे क्या क्या साइन आपने लगाने हैं। ठीक है, तो आपने जब लूप 1 पे लगाया तो ईएमएफ वाली टर्म जो है ऊपर वाली लूप में पॉजिटिव थी क्योंकि उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हुआ था, और नीचे वाली लूप में ई वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है क्योंकि उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस हुआ है। अब आ जाओ बाकी की चीजों पे। स्टूडेंट्स जो I इंटू आर वाली टर्म्स हैं उनकी कन्वेंशन बिल्कुल आसान है। अगर करंट की डायरेक्शन मैच करे लूप की डायरेक्शन के साथ तो I इंटू आर वाली टर्म पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स जब हम यहाँ से घूम के इस तरफ आ रहे हैं, अब करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और लूप जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए दोनों चीजों को, करंट जा रहा था इस तरफ और लूप जा रही थी उसके ऑपोजिट। तो जो R1 रेजिस्टेंस है उसमें I इंटू आर वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गई साइन नेगेटिव, माइनस I1 R1, पहली टर्म नेगेटिव हो जाए। उसके बाद आ जाओ दूसरे रेजिस्टेंस पे। दूसरा रेजिस्टेंस है ये, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन है इस तरफ और करंट की डायरेक्शन है इस तरफ। तो यहाँ पे भी जो करंट और लूप है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी करंट इंटू रेजिस्टेंस वाली टर्म जो है उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ईएमएफ वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है और करंट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है। आप चाहो उसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हो that E1 will be equal to I into R, 1 वाली दोनों टर्म्स, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। तो बेसिकली स्टूडेंट्स करना क्या है, हमने इन क्वेश्चंस में हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और उनके बाद उनको सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यूज जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया होता है इन क्वेश्चंस का, राइट। अब देखिए स्टूडेंट दूसरी लूप में मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, उसमें ई वाली टर्म का साइन हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। अब देखिए बाकी का, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर मत लिखिए। यहाँ पे करंट स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और लूप जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ये लूप ऐसे घूम के आ रही है क्लॉकवाइज और यहाँ पे करंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो जब करंट और लूप जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, I इंटू आर वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये है I2 इंटू R3। सिमिलरली यहाँ ऊपर भी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है
यहाँ पे देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और लूप जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें भी I इंटू आर वाली टर्म जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव. Gautam, what is it? Why you're typing there all this thing? मैम वो लव से बात कर रहा था मैम. तो बेटे why you are typing the messages here? क्यों बात करनी है while class is going on? Okay, listen. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे I इंटू आर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स I इंटू आर वाली जो हैं वो पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगे स्टूडेंट्स, जिनको आप सॉल्व करके करंट की वैल्यूज को निकाल पाओगे. तो I इंटू आर वाली टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं अगर करंट और लूप की डायरेक्शन मैच करे, और अगर ना मैच करे तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं. और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, उससे आपकी फाइनल इक्वेशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ऊपर वाली लूप जो है क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज ले लेती, तो क्या होना था, ये सारे साइन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाने थे, उसके बाद आप उनको कॉमन निकालते, फिर से इक्वेशन यही बन जानी थी. तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी अपनी चॉइस है, इक्वेशन सेम रहेगी. ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड लॉ. इसकी ज्यादा क्लैरिटी आएगी व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अ क्वेश्चन. तो मैं पहले आपको एक इक्वेशन, इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, so that you better understand what is it about. Okay, now see this thing. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कुछ लूप सपोज करने लगी. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 3 सेल दिए हुए हैं और 3 करंट्स की वैल्यूज हैं. क्या दिखाया हुआ है कि जो E3 करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका एक हिस्सा E2 इधर जा रहा है, इधर E1 जा रहा है. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से सुनिए सारे, अगर मैं मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मैंने करंट निकालने हैं सारे सर्किट्स में. अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं I1 एंड I2, तो मुझे दो लीनियर इक्वेशंस चाहिए I1 I2 में. अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3, तो मुझे 3 लीनियर इक्वेशंस चाहिए I1 I2 I3 में. तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, फिर उन तीनों को मैं सिंप्लीफाई करके 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगी. फिर उसके बाद क्या होगा कि मुझे उनको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. जहां तक पॉसिबल हो आपने उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन पे आके दो हिस्सों में करंट डिवाइड कर रहा है I1 एंड I2 में, और सॉरी दिस वन वाज I1 और I2 दो हिस्सों में करंट डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से जो एंटर कर रहा था करंट दैट वाज I3. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे बिल्कुल क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि जो I3 है वो असल में I1 प्लस I2 के बराबर है, क्योंकि जो करंट एंटर कर रहा था वही लीव करेगा आगे. यानी कि मुझे हर जगह पे I3 लिखने की बजाय मैं यहाँ पे I1 प्लस I2 अगर लिख दूं तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो मेरे पास सिर्फ दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, 3 नहीं बनेंगी. राइट. ओके, नाउ लेट मी कंसिडर दिस टू बी लूप 1. अब लूप 1 की इक्वेशन लिखेंगे हम. इन लूप 1 आपने इक्वेशंस बनानी है, फिर उनको सॉल्व करना है. इन लूप 1 हमारे पास अभी 3.5 मिनट है, सो आई क्विकली फिनिश इट अप. उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सेशन बंद हो जाएगा. सी दिस वन. तो लूप 1 है स्टूडेंट्स. तो लूप 1 में सबसे पहले जो EMF है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल फेस हो रहा है, तो जो E1 है वो पॉजिटिव में आएगा. तो E1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पॉजिटिव आएगा. उसके बाद करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और लूप भी इसी तरफ ही चल रही है, ऐसे घूम के आएगी लूप. तो लूप भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में है. करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है I1 है, तो प्लस ये पॉजिटिव आएगा. करंट कितना है I1 मुझे नहीं पता कितना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4. तो I1 इंटू 4 लिख दो या 4 इंटू I1 लिख दो, वो आपकी मर्जी है. I इंटू आर वाली टर्म हमने ली है. उसके बाद जब आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है और लूप इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं. तो यहाँ पे जो साइन आएगा I इंटू आर वाली टर्म का वो नेगेटिव आएगा. सो इट विल बी -3 टाइम्स I2, -3 टाइम्स I2 आ जाएगा. नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में था. 3 रेजिस्टेंस है और I2 करंट की वैल्यू, तो I इंटू आर वाली टर्म है. उसके बाद आ जाओ सेल पे, सेल का नेगेटिव टर्मिनल फेस हो रहा है, तो EMF कितनी आएगी नेगेटिव. तो ये वैल्यू हो गई इस तरह से. ओके बेटे रुखसाना कर देती हूँ मैं रिपीट एक बार.
ओके लिसन नाउ, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको कि ये सारी क्वेश्चंस किस तरह से आई हैं। ये हमने एक लूप सपोज की थी लूप 1, तो लूप 1 के लिए इक्वेशन मैं लिख रही हूँ। उस लूप में मूव करते टाइम सबसे पहले मैंने बैटरी का पॉजिटिव फेस किया, तो उसकी ईएमएफ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर बैटरी का पॉजिटिव पहले फेस होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पहले फेस होगा तो ईएमएफ नेगेटिव। नंबर 2, उसके बाद आ गया ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और जब लूप में हम घूम रहे हैं तब भी हम पहले किस तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस के लिए जो I इंटू आर वाली टर्म होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो वो क्या आ गई 4 इंटू I1। ऐसे ही जब हम नीचे आ गए तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, लेकिन लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसलिए इसके लिए I इंटू आर वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और उसके बाद आ गए इस सेल की तरफ, तो इस सेल का पहले नेगेटिव टर्मिनल फेस हुआ, इसलिए ईएमएफ वाली टर्म हो गई नेगेटिव। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या बन गई, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इट विल बी 4I1 3I2 +1 = 0। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 1। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट वाली लूप पे, ये आगे लूप नंबर 2। क्लॉकवाइज लेनी है एंटी क्लॉकवाइज, इंटायरली आपकी अपनी चॉइस है। इसमें स्टूडेंट्स ये ख्याल रखना है कि I3 नहीं लिखना, उसकी जगह पे I1 + I2 लिखना है, नहीं तो एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल फेस हुआ है, इसलिए इसकी ईएमएफ जो है वो लेनी है पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, लूप की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, तो I इंटू आर वाली टर्म दैट इज 3 इंटू I2 ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पहुंच गए हैं हम, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, लूप भी इसी तरफ है, तो प्लस ट्वाइस करंट कितना है, I1 + I2 है। और उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, -4 = 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दैट विल टर्न आउट टू बी 2I1 3 + 2 5I2 -3 = 0। ये आ गई इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशंस ही बनानी है स्टूडेंट्स।